Hello everyone, I am Muskan Vaishnav and our today's class of class 8, chapter 2nd, microorganism friend and foe, part 1st. And in this chapter we will learn about microbes, history of microbiology, where do microorganisms live, beneficial microorganism, harmful microorganism, food preservation, and our last topic will be nitrogen cycle. As we already know that in our environment, many living organisms are present and some living organisms are large in size and some are small in size. And the living organisms which are large in size can be seen through a naked eye, but there are number of living organisms that cannot be seen with naked eyes and are so small in size, and these living organisms are known as microbes or microorganisms. Microbes play both harmful and useful role in our lives. जो ये माइक्रोब्स है वो हार्मफुल कैसे हैं? क्योंकि जो ये माइक्रोब्स हैं वो ह्यूमंस, प्लांट्स एंड जो एनिमल्स हैं उनके अंदर डिजीज़ का क्या होता है, कॉज, कारण होते हैं. एंड जो यूज़फुल है, और यहाँ पे क्या है, कई सारे बेनिफिट्स भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. जैसे कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में काम आता है, हमारे फूड में काम आता है, और मैनी मेडिसिन के अंदर भी इनका क्या होता है, यूज़ होता है. ओके, एंड नाउ द टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, एंड द ग्रुप्स आर, फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, second one is fungi, third one is protozoa, and fourth one is algae, and the last one is viruses. Now have a look on some characteristics of viruses, because viruses are quite different from other microorganisms, because viruses are smallest of all microorganisms, and all microorganisms, that means जो हमने पहले जो टाइप्स पढ़े थे, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरसेस, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से जो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, वायरस. ओके, वायरसेस आर लाई ऑन दी बॉर्डरलाइन डिवाइडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो वायरस हैं वो उस बॉर्डर लाइन के ऊपर लाई करते हैं जो बॉर्डर लाइन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, डिवाइड. अब कैसे कि in viruses there is a lack of cellular structure which is the property of a non-living organism, and they can reproduce inside the living organism which is the property of a living organism. That's why viruses are lie on the borderline dividing living and non-living organism. Now the structure of the microorganism may be unicellular or multicellular. Such as unicellular microorganism, some algae, fungi, bacteria and some protozoa, and multicellular microorganism, some algae and some fungi. Now we come on our next topic, which is history of microbiology. First of all, what is microbiology? Microbiology is the branch of science which deals with the study of microbes. साइंस के जिस ब्रांच के अंदर हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी. अब माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में जो सबसे फर्स्ट नेम है साइंटिस्ट का वो किसका है, रॉबर्ट हुक. एंड जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कौन सा वर्क किया था कि इन 1665 ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल्स, बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ यूजिंग हिज ओवन माइक्रोस्कोप. कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कुछ कॉर्क सेल्स और कुछ बैक्टीरियाज को अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प लेके उन सभी को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था. एंड इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड साइंटिस्ट इज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंड दे वर्कड इन 1676. He was the first to describe and sketch microbes. इन साइंटिस्ट ने ही सबसे पहली बार जो माइक्रोब्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था और उनके स्केच को भी डिस्क्राइब किया था. एंड द थर्ड साइंटिस्ट इज लुइस पास्चर. इन 1857 to 59 he discovered that fermentation is caused by yeast, and yeast is a fungi.
and he disproved the theory of spontaneous generation. जो लुइस पास्चर थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि जो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन? देन द फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ sugar into alcohol. Okay, and this process is done by the yeast which is a microorganism. Okay, और जो लुइस पास्चर है उन्होंने क्या डिस्प्रूव किया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको डिस्प्रूव किया था. एंड इन द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या था कि जो इसमें कहा गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. ओके, तो जो लुइस पास्चर थे उन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया था? डिस्प्रूव कि ऐसा नहीं होता है. फोर्थ वन इज रॉबर्ट कोच इन 1882. ही गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस. ओके, एंड इन द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस, इस थ्योरी में क्या है कि जो जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या होते हैं? डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स होते हैं. ओके, एंड फिफ्थ वन इज क्रिश्चियन ग्रैम. In 1884, he developed Gram-Stand technique. And the last one is Alexander Fleming. In 1929, he developed an antibiotic penicillin from Penicillium notatum. And the Penicillium notatum is a fungus. Okay, and this is the history of the microbiology. Now we come on the next topic. Where do microorganisms live? Microorganisms can survive under all types of environment. That means all types of microorganisms can live in from ice cold areas to hot spring areas and from deserts to marshy lands. Microorganisms are found in many places such as inside the bodies of animals including humans, on other organisms, while others exist freely at the bottom of the sea and in dead and decaying matter. And the microorganism can live alone like amoeba, in colonies like fungi, and as parasites. And as parasites, that means either outside or inside the body of living organism. Now our next topic is microorganism and us. Microorganisms play both harmful and useful role in our lives. Some microorganisms are very harmful for us because they produce many diseases in our body and in many animals' body and in plants. And some microorganisms are very useful for us. Now have a look on useful microorganism. Microbes are used for a number of purposes, such as first one is preparation of curd, idli, dosa, cheese, etc. जो कर्ड, इडली, जो भी ये फूड आइटम्स हैं, इन सभी के प्रिपरेशन में जो यूज़फुल होते हैं वो कौन होते हैं? माइक्रोब्स. इन माइक्रोब्स की ही हेल्प से जो इन सभी फूड आइटम्स का जो प्रिपरेशन है वो होता है. सेकेंड वन इज इन मेडिसिन, सच एज माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैनी एंटीबायोटिक्स such as penicillin. Third one is in food. In our food, many microbes are present which is very useful for us. And the fourth one is in cleaning the environment. जो environment में क्या होते हैं कि कई सारे जो भी living organism है वो present होते हैं, उनके dead होने के बाद में जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या काम करते हैं? इनको डिकम्पोज करने का, और इनको डिकम्पोज करने से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या रहता है? क्लीन. एंड द फिफ्थ वन इज इन इंडस्ट्रीज. इन इंडस्ट्रीज सच एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. एंड द लास्ट वन इज इन एग्रीकल्चर. In agriculture, microorganism is used to increase the soil fertility. Now we study about all the useful purposes of the microorganism one by one with all details, in which the first one is formation of curd. First of all, curd. We all like to eat curd with many food dishes, but do you know that curd contains several microorganisms, namely
lactobacillus. Then lactobacillus microorganism is present in our curd. Now we talk about the process of the formation of curd. कि जो ये formation of curd की process है उसके अंदर क्या होता है. Then in this process lactose, which is nothing but a milk sugar, is converted into lactic acid. कि जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज क्या होता है, वो शुगर होती है जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मिल्क के अंदर. तो जो जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये लैक्टोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर. और इसी कन्वर्जन की वजह से जो मिल्क है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड के अंदर. अब जो ये प्रोसेस है वो होती किसके हेल्प से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से. और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस. नाउ हाउ कर्ड इज फॉर्म. अब ये कर्ड है वो बनता कैसे है. देन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड टेक अ कंटेनर. ओके, और इस कंटेनर में हमें क्या लेना है, मिल्क. और इस मिल्क की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, वार्म. हमने क्या लिया, ये कंटेनर, उसके अंदर हमने क्या लिया, वार्म मिल्क. नाउ ऐड सम अमाउंट ऑफ कर्ड इन इट. And after adding this amount, the bacteria which is present in this curd is start to growing. और उसकी ग्रो करने की स्टेज जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट. और उसकी वजह से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या स्टार्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं. जिसकी वजह से जो ये क्या करते हैं, इस लैक्टोज को जो कि किसके अंदर प्रेजेंट था, मिल्क के अंदर, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर. जिसकी वजह से जो मिल्क था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड के अंदर. अब यहाँ पे जब ये मिल्क कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड के अंदर, तब हमें क्या करना है, उस कंटेनर को हमें एक ऐसे प्लेस के अंदर स्टोर करना है जहाँ की कंडीशन कैसी हो, कूल हो. मतलब वार्म कंडीशन के अंदर हमें उसको स्टोर नहीं करना है, क्योंकि अगर वो वार्म कंडीशन के अंदर स्टोर रहेगा तब जो लैक्टिक एसिड है वो किसके अंदर फॉर्म हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट के अंदर. जिसकी वजह से जो कर्ड का टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, श्योर. जिसकी वजह से हम उस कर्ड को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. ओके, देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड. नाउ द नेक्स्ट पर्पज इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में कैसे हेल्पफुल होते हैं. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि बीन्स, पीज एटसेट्रा, ये सारे जो भी प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल्स. और इन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया, नेमली राइजोबियम. तो इन रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, राइजोबियम प्रेजेंट है. अब ये राइजोबियम क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर. लेकिन ये कन्वर्जन होगा कहाँ पे, रूट्स के अंदर होगा. अब ये रूट्स के अंदर होगा और ये रूट कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर. तो जो भी ये कन्वर्जन है वो कहाँ पे हो रहा है, सॉइल के अंदर हो रहा है. तो जिसकी वजह से मतलब इस कन्वर्जन की वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. अब जब ये जो नाइट्रोजन है वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तब जब वाटरिंग होती है, जब हम क्या करते हैं मतलब वाटरिंग करते हैं प्लांट्स के अंदर, तब जो भी ये कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के वो किसके साथ में मिक्स हो जाते हैं, वाटर के साथ में. और वाटर के साथ में मिक्स होने के बाद में जो ये प्लांट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, इन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से और फिर क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड. तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने पे भी हेल्पफुल होते हैं. अब जो ये कंप्लीट प्रोसेस थी, जो मतलब कि द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. और यहाँ पे एक पॉइंट कि
जो ये बैक्टीरिया होते हैं और या फिर जो भी ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया को हम और एक नाम से कहते हैं कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल। देन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जैसे कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर किन का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि अल्कोहल, वाइन्स, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन सब का फॉर्मेशन होता है, उन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर कौन यूजफुल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये कैसे यूजफुल होते हैं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एज ए एग्जांपल हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, यीस्ट। ओके, यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस। यीस्ट किसका टाइप है, फंगस का टाइप है। ओके, अब जो ये यीस्ट है वो क्या करता है, जो ये अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर यूजफुल होता है। अब कैसे यूजफुल होता है कि जो यीस्ट है उसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है ऑन शुगर्स। जैसे कि जो भी शुगर्स होती है, मतलब कि जो वीट, बार्ली, जो भी सेरेल्स है, इनके अंदर जो भी शुगर्स प्रेजेंट होती है, इन शुगर्स के ऊपर जो ये यीस्ट है उनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और इनके ग्रो करने की वजह से जो ये यीस्ट है वो क्या करते हैं, इन शुगर्स को, जो भी ये शुगर्स थी, इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, अल्कोहल एंड CO2 गैस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कन्वर्ट करने के बाद में जो ये यीस्ट है ये किसका प्रोडक्शन करेगा, अल्कोहल का। और इसी कन्वर्जन को, कौन से कन्वर्जन को, फ्रॉम शुगर टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस कन्वर्जन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, लुईस पास्चर ने। तो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी उसकी डिस्कवरी की थी लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने। कब की थी, 1857 में। दैट्स क्लियर। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आया कि जो यीस्ट है वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में कैसे यूजफुल था। अब हम सेकंड बात करते हैं एक एरोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, एसिटोबैक्टर। तो जो ये एसिटोबैक्टर है वो भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जो ये एसिटोबैक्टर है वो किस में यूजफुल होता है, जो विनेगर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, उसके फॉर्मेशन में यूजफुल होता है। अब जो ये एसिटोबैक्टर है वो इस विनेगर का प्रोडक्शन किससे करता है, अल्कोहल से। तो जो ये एसिटोबैक्टर है वो विनेगर के प्रोडक्शन में यूजफुल होता है, और जो ये एसिटोबैक्टर है वो विनेगर अल्कोहल से प्रोड्यूस करता है। एंड द थर्ड एग्जांपल इज द फंगस, नेमली एस्परगिलस। तो जो ये फंगस है एस्परगिलस, वो किसके प्रोडक्शन में यूजफुल होता है, तो ये जो एस्परगिलस है वो सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन के अंदर यूजफुल होता है। तो यहाँ से जो ये थर्ड पॉइंट था इन इंडस्ट्रीज की, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे हेल्पफुल होते हैं, वो यहाँ से क्लियर होता है। एंड नाउ द फोर्थ यूजफुल पर्पस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मेडिसिनल यूज। तो जो मेडिसिन होती है जिनका हम यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, उन मेडिसिन का जो सोर्स होता है वो भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, जब उनको हम एज ए मेडिसिन फॉर्म में हम यूज़ करते हैं तब वो क्या करते हैं कि जो भी डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी जो भी ग्रोथ है उस ग्रोथ को क्या कर देंगे, या तो उस ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे या फिर क्या करेंगे, उन जो भी डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल कर देंगे। ओके, और जो भी ये मेडिसिन्स हैं जो ये काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, उन मेडिसिन्स को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। और जो ये एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो किसने प्रोड्यूस की थी, तो वो प्रोड्यूस की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और कब की थी, इन 1929 में। और जो इन्होंने एंटीबायोटिक फॉर्म की थी उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन। ओके, तो यहां तक बात आ गई समझ में।
अब जो ये एंटीबायोटिक्स हैं वो किसके अंदर यूज होती है? डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, और ये किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के जो नाउअडेज यूज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उनमें से हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हमें क्या करना चाहिए कि जब हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो उनके यूज़ करते समय हमें क्या करना चाहिए? जो कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, जो भी ये एंटीबायोटिक्स हैं हमें ये किसी भी डॉक्टर की सिर्फ एडवाइस पे ही लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कोई भी, जैसे हल्का सा बुखार हो गया या खांसी हो गई तो मतलब जो भी हमें मेडिसिन पता हो वो जाके हमने यूज़ कर ली। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें कोई भी एंटीबायोटिक का यूज़ है वो किसी भी डॉक्टर की एडवाइस पे ही यूज़ करना है। और जो भी हमें जो कोर्स दिया गया है एंटीबायोटिक का, उस कंप्लीट कोर्स को, उस पूरे कोर्स को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है, उसको यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि जैसे 5 डेज़ का कोर्स हमें प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर से और हमने उस 5 डेज़ के जो कोर्स है उसको कंप्लीट नहीं किया, 3 डेज़ में ही कर लिया, तो वो जो एंटीबायोटिक है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी। एंड द थर्ड वन इज़, जो भी एंटीबायोटिक हैं उनका हमें हम जब उसका यूज़ करते हैं तब हमें उनका एक्सेस डोज के अंदर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक्स का एक्सेस डोज के अंदर यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकती है। तो ये था यूजफुल पर्पस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिकल फील्ड के अंदर। तो हमें इससे पता चलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेडिकल फील्ड के अंदर भी यूजफुल होते हैं। एंड नाउ द फिफ्थ यूजफुल पर्पस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन वैक्सीन्स, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस में यूज़फुल होते हैं? वैक्सीन्स में भी यूज़फुल होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो सीखते हैं। अब जो हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में के अंदर क्या प्रेजेंट है? कई सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो सारे यूज़फुल हो हमारे लिए, नहीं। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और जो क्या कॉज करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैनी डिजीज, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तब हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? मैनी एंटीबॉडीज। ठीक है, अब वो जो बॉडी है उसने क्या प्रोड्यूस किया? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेगी? जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो एंटर हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको क्या कर देगी? या तो किल कर देगी और या तो क्या करेगी? उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। और ऐसे ही हाँ, जो ये एंटीबॉडीज है वो हमें क्या कर देती है? क्योर, हमें ठीक कर देगी। ओके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भी डिजीज़ हैं, मतलब कि जो भी डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर अकर हुई है उनकी एंटीबॉडीज़ हमारी जो बॉडी है उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो ये वैक्सीन्स हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ताकि जो ये वैक्सीन्स हैं वो क्या करें? जो ये एंटीबॉडीज़ हैं उनके वर्क को क्या करें? स्टिमुलेट करें। ओके, दैट्स क्लियर। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो ये वैक्सीन्स है वो करते क्या हैं। तो वैक्सीन्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ के वर्क को स्टिमुलेट करते हैं। दैट्स क्लियर। अब व्हाट इज़ वैक्सीन? एक्चुअली में वैक्सीन्स होती क्या है? तो वैक्सीन्स क्या होते हैं? सस्पेंशन होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन होते हैं, दैट मीन्स एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। अब इन सस्पेंशन में क्या होता है? डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बोला? डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो ये डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस फॉर्म में रहते हैं? या तो वीकेंड फॉर्म में रहते हैं या फिर किल्ड फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से ये वैक्सीन्स या फिर ये सस्पेंशन हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। दैट्स क्लियर। तो अब हमने क्या किया? जो सस्पेंशन था जिसके अंदर वीकेंड या फिर किल्ड डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उसको हमने क्या किया? हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया। तो अब ये क्या करेगा? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वीकेंड फॉर्म में है तो वो कोई भी डिजीज को प्रोड्यूस कर तो नहीं पाएगा, लेकिन वो क्या करेगा? जो भी एंटीबॉडीज के वर्क को है वो क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा। दैट्स क्लियर। तो ये होती है वैक्सीन्स। अब यहाँ पे कई सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो वैक्सीन्स की हेल्प से क्योर होती है, मतलब कि ठीक होती है।
तो उनमें से जो एग्जाम्पल्स है वो फर्स्ट वन है कॉलेरा, सेकेंड वन है ट्यूबरक्यूलोसिस, थर्ड वन है स्मॉल पॉक्स एंड फोर्थ वन है हेपेटाइटिस. देन these are the example of the disease which is cured with the help of the vaccines. That's clear. अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो जो फर्स्ट वैक्सीन थी उसको डेवलप किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एडवर्ड जीनर. उन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया था. कब किया था? 1798 में. ओके. और जो उन्होंने जो फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी वो वैक्सीन किसके लिए थी? मतलब कौन सी डिजीज़ के लिए थी? तो वो थी स्मॉल पॉक्स के लिए. ओके. तो ये था फिफ्थ पर्पस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड सिक्स्थ वन इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन सभी पर्पसेस के अलावा जो एनवायरनमेंट है हमारा उसको क्लीन करने में भी यूज़फुल होते हैं. अब वो कैसे होते हैं? तो क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन प्रेजेंट है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या होते हैं? मतलब अगर ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो उनकी डेथ भी होगी. मतलब ऐसा तो नहीं होता कि ये मतलब कि लाइफ टाइम तक इसी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, नहीं. तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं. तब जो इनकी डेड बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती है? हमारे इसी एनवायरनमेंट, इसी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती है. तब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? जो ये डेड बॉडीज़ होती है, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सब की डेड बॉडीज़ को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज करके एक ऐसे फॉर्म या फिर कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो कि या तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है या फिर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करती है या फिर कोई भी ऐसे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देती है जो कि हमारे जो भी एनवायरनमेंट है या फिर जो अर्थ है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती हो. ओके. तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी यूजफुल होते हैं. एंड द लास्ट वन इज इन फूड. तो फूड के अंदर तो क्लियर है कि जैसे कि कई सारे ऐसे फूड डिशेस होती है जैसे कि इडली, डोसा, खमन, ढोकला, ये सारी जो फूड डिशेस होती है वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होती है? तो इनके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज़ करते हैं? तो जब भी हम क्या करते हैं इनका प्रोडक्शन या फिर इनको बनाते हैं, घर पे कुक करते हैं, तो अब हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं? यीस्ट. जो यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, क्या था? फंगस था. तो इसको हम यूज़ करते हैं इन सब के प्रोडक्शन या फिर इन सब को बनाने के लिए. तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे एज अ फूड भी यूज़ होते हैं. तो यहाँ पे जो ये 7 पॉइंट्स थे वो क्या थे? यूजफुल पर्पसेस थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. और इन सभी 7 पॉइंट्स को हमने है ना अच्छे से और पूरी डिटेल से इनको क्या किया है? स्टडी किया है. ओके. और इसी पॉइंट के साथ में जो हमारा पार्ट फर्स्ट है सेकेंड चैप्टर का वो यहीं पे क्या होता है? फिनिश. थैंक यू.